હવે ગઈકાલે આપણે પીડીએફ ફાઇલ ઓન કરજો. ગઈકાલે આપણે सम्स કર્યા હતા. આયુષી વાંચજો ને બેટા. કયા સમથી શરૂ કરવાનું હતું? ગઈકાલે આપણે કયા સમ પર અટકેલા હતા? એક સમ જે હતો તે આપણે ઇક્વેશન બનાવીને છોડી દીધું. એવું કંઈક હતું. બરાબર ને? એમ જ હતું ને? यस सर. ઓકે, તો આપણે પેલે ફાઇલ આપણે એક ખોલીએ, પછી નવી ફાઇલ પર જઈશું. ઓકે, सर 6 सम करिए. હા હા, 6 સમ બરાબર છે. યાની હવે આ ઇક્વેશન આપણે ઇક્વેશન 1 બનાવેલો હતો, તો આપણે આ ઇક્વેશન 1 હવે બનશે કે બંને સાઈડ પરથી આ a સ્ક્વેર ને a સ્ક્વેર કટ થઈ જશે. सर कैमरा ऑन નથી, પ્રેઝન્ટ સ્ક્રીન ઓન. ઓ યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો ફાઇન, તો a સ્ક્વેર બંને સાઈડ પરથી કટ થઈ જશે અને x સ્ક્વેર માઇનસ 2ax પ્લસ y સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 0, આ તમારો ઇક્વેશન આવશે. એને આપણે આવી રીતના લખી શકીએ કે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ax, यानी x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू a. आने अपने रिजल्ट 1 मानी लिए. હવે આ રિઝલ્ટ 1 ને ડિફરન્સ ઇન રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓન બોથ ધ સાઇડ કરાવો, यानी कि શું થશે? x સ્ક્વેર નું શું થશે? 2x. આપણે 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 આમાં કરી લઈએ, કોસન રૂલમાં કન્વર્ટ કરી લઈએ. બરાબર, તો શું થશે? નેક્સ્ટ પેજ લઈ લઈએ. ચલો, તો 2x નો સ્ક્વેર એટલે 4x સ્ક્વેર, 2x એઝ ઇટ ઇઝ. કોસન રૂલ લગાવી રહ્યો છું. ન્યુમરેટરને પહેલા ડિફરન્શિએટ કરશું. x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ડિફરન્શિએટ કરાવીએ એટલે 2x પ્લસ 2y. ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શન રૂલ यानी dy બાય dx મલ્ટીપ્લાય કરાવશું, બ્રેકેટ ઓવર માઇનસ. હવે ન્યુમરેટર એઝ ઇટ ઇઝ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ, ને ડિનોમિનેટર કોણ હતું? 2x. 2x નું ડિફરન્શિએશન શું આવે? 2. બરાબર છે. આ આખા અંદર ડિવાઇડેડ બાય 4x સ્ક્વેર. આ અસલમાં મારો ટર્મ કા હશે? યા લખવો હશે મેં. ડિવાઇડ બાય આખું 4x સ્ક્વેર આવશે, ઇક્વલ ટુ કોણ છે? કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ a. નું ડિફરન્શિએશન શું થશે? 0. એને જરા બરાબર આપણે એને પરફેક્ટલી લખીએ તો જો 2 1 ઝા અને 2 2 ઝા x ને આ x બી કટ થઈ જશે એટલે એક x બચશે. યાની હવે શું થશે કે આપણે મળશે 2x પ્લસ 2y ઇન્ટુ dy બાય dx માઇનસ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2. એને આખાને કોણ ડિવાઈડ કરે છે? 2x ડિવાઈડ કરે છે, ઇક્વલ ટુ કોણ? ટેક 0. હવે હવે તમે જોશો अच्छा एक मिनट एक अपनाથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે બાર. ખબર પડી શું મિસ્ટેક થઈ? સિલી મિસ્ટેક થઈ છે. પાછું ક્વેશ્ચન રૂલ લગાવી ને એક વારનું એક બરાબર લખવાની કોશિશ કરીએ. તો જો 2x નો સ્ક્વેર 4x સ્ક્વેર, 2x એઝ ઇટ ઇઝ
x square differentiation આવશે 2x, y square differentiation આવશે 2y, implicit function rule dy by dx minus x square plus y square as it is અને 2x નું differentiation આવશે 2 ઇક્વલમાં a છે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એ 0 થઈ જશે ડિફરન્શિએટ કરશું તો હવે આ આખામાંથી 2 કોમન નીકળે છે તો બરાબર તો 2 કોમન કાઢી કાઢો એટલે અંડર બ્રેકેટમાં બસશે x into 2x plus 2y dy by dx bracket over minus x square plus y square whole bracket over divided by 4x square equal to કોણ છે કે 0. આ મિસ્ટેક થયેલી હતી આપણે આ 2 2 કટ થઈ ચલો ઓકે હવે બચ્યું શું यानी कि अंडर x मल्टीप्लाई करो कराई सको तो 2x into x 2x square 2x into y 2xy dy by dx बराबर છે माइनस x square माइनस y square इक्वल टू તમારે શું રહેશે 0 કારણ કે નીચે ડિવાઇડ બાય 2x સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0 લખવાનો કોઈ મતલબ નથી બરાબર ખાલી તમે ન્યુમેરેટર ઇક્વેટ કરાવો 0 થી ખબર છે અમને 1000 વખત કરી ચૂકા છે 2x square minus 1x square x square બરાબર minus y square plus 2xy dy by dx equals to 0 આ તમારો કોણ થયો આર્બિટ્રરી કોન્સ્ટન્ટ એલિમિનેટ થઈ ગયો અનનોન કોન્સ્ટન્ટ એલિમિનેટ થઈ ગયો અને ડેરિવેટેડ ફોર્મમાં આવી ગયું વિથ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ यानी दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन कई नहीं करूँ अपने क्वेश्चन रूल लगायु ने क्वेश्चन रूल लगाने खाली सिम्प्लिफाई करूँ बस बीजू कई ज नहीं करूँ बराबर से पेलू सिम्प्लिफिकेशन आगल करवामां पेलू डिनोमिनेटर अपने अर्धु अर्धु लखेलू ने एमां आपने सीरी मिस्टेक थई हती એટલે પાછું ફરી આખો સ્ટેપ જ ફરીથી કરા यस सर. बोल आदित्य क्यों इतना लेट हो गया भाई नाश्ते करने बैठ गया होगा वापस चलो कोई ना क्या होगा मेडिकल अच्छा अब मोदी सर का ऐसा है आज कि मोदी सर के कोई रिलेटिव में कोई गुजर गए हैं तो मोदी सर वहां पे बिजी है तो आज भी मैंने ले लिया अब कल और परसों मोदी सर ले लेंगे चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 ये इक्वेशन मुझे बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा राज करेगा क्वेश्चन पढ़ो आयुषी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो यादव आओ क्वेश्चन करो पीडीएफ फाइल खोली नहीं होगी है ना अभी तक લેફ્ટ થઈ ગયા ઓ મેં બોલી તો ખરી ક્વેશ્ચન झूठे હેલો ઓય શું જુઠ્ઠી टिप्पणी ઓ नोटिस. વાહ ઓ માં કેવી રીતે સર આવ્યા भी है और क्वेश्चन बोली नहीं बोली जानबूझ के नहीं बोल रही थी. हाँ, ओ वाह वाह मैं आपको क्वेश्चन वाइज सुना ही नहीं दिया. ચાલો વાંચું છું પાછું જો હવે સંભળાય છે ફ્રોમ હેલો ફ્રોમ હેલો અલા समझ अबे रुकना सर पर होने दे. ओए 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 तुम लोग मस्ती कर रहे हो ना मेरे साथ हेलो सर इसलिए निकल गए थे तेरी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही वही. थी हाँ तो और किसकी. आयुषी चलो बेटा हाँ from the differential equation of the family of paraboles having vertex at origin and axis along positive y axis
हेलो। बराबर। हाँ हाँ सुना सुना मैंने सुना। ओके राज, यस सर। इक्वेशन सर इक्वेशन इसमें कैसे तो बनाएंगे बता। पैराबोला है तो वो 4ay वाली बनेगी ना। हाँ 4y वाली एक्स बनेगी बराबर है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y तो एक्सिस पे है, तो क्या बनाएंगे, क्या होना चाहिए ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4by होना चाहिए, या वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर ना, क्योंकि इक्वल्स टू अलोंग 4। अलोंग वाई एक्सिस है ना, तो अलोंग वाई सर एक्सिस है, तो याद रखना है पंकज, आयुषी, आदित्य, हाँ याद सर। रखना है कि अलोंग वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, यही होना चाहिए। बराबर है, ये हमने सीखा हुआ कॉनिक सेक्शन में पिछले साल, वो बात अलग है कि, हम्म। हाँ वो क्या बात अलग है आप लोगों को पता है। चलो ठीक है, ये रिजल्ट 1 हो गई बात। अब डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, चलो लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both the sides, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बच्चे बच्चे को पता है, किंडर गार्डन के बच्चों को पता है कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इज इक्वल टू, हाँ 4b, और y का डिफरेंशिएशन डिवाइड ये बाय नर्सरी के बच्चे को पता है dy/dx, ये 2 तो 1 सा है, 2 तो 2 सा है, यानी कि x इक्वल्स टू 2b dy/dx ऐसा आएगा। चलो ठीक है, अब इसको रिजल्ट 2 माने, बराबर, तो टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम दोनों ये इक्वेशन जो है यहाँ पे रिजल्ट 1 दिखाई दे रहा है हमें, और इक्वेशन 2 भी यहाँ पे हमने अभी जस्ट बनाया, उन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो इक्वेशन 1 कौन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ऑब्वियसली ये तो हमने इक्वेशन बनाया है, उसको हम डिवाइड करेंगे, रेशियो लेना, डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड इक्वेशन से, जो x इज इक्वल 2by dy/dx है। तो यहाँ पे क्या होगा, b कट होगा, 2 तो 1 सा है, 2 तो 2 सा है, x x कैंसिल होगा, x बचेगा, यानी कि ये होगा x इज इक्वल टू, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड में आ रहा हूँ, वापस आ रहा यस सर। हूँ, चलो शुरू करिए, तो x इज इक्वल टू 2y dy/dx, बराबर। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों रेशियो लिया, मैंने कल ही सिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो दो चीजें याद रखनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि अननोन कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन दूसरे उसके साथ कौन सी कंडीशन कौन सी जुड़ी हुई है कि मिनिमम डेरिवेट करने के बाद, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि हम उसको वापस एक बार और dy/dx को उधर भेज दे, और 2b को हम डिवाइड करवा डेरिवेट करा, 2b 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बचेगा, लेकिन हम रेशियो ले रहे हैं, तो एक ही बार डेरिवेट करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है, तो हमें ये याद रखना है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, हैविंग गेटिंग इट डेरिवेटेड फॉर द लीस्ट टाइम, हमें उसको ज्यादा डेरिवेट नहीं करना है, जितने जितने कम डेरिवेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है वो हमारे लिए सही आंसर रहेगा। बराबर, मैं क्या कहने की मतलब समझ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 है ना, ओके तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ये इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल 2b dy/dx है, ठीक है, मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x अपॉन dy/dx कर लो, चलो इज इक्वल टू 2b है, अब dy/dx अपन dy/dx है, उसको हम वापस डेरिवेट करना तो कर सकते हो सर, dy/dx को से डेरिवेट, dy/dx को डेरिवेट करो, d2/dx हो जाएगा, डबल डेरिवेशन नहीं, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्यों, मिनिमम डेरिवेशन करना है, मिनिमम डेरिवेशन करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है बाय एलिमिनेटिंग दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अब उसको dy/dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x इंटू dy/dx
इज इक्वल टू 2y। dy बाई dx को एनसीईआरटी पैटर्न में y डैश भी लिखते हैं, तो x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2y। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। आयुषी नौ नौ मैथ्स नहीं करती है बेटा, वाई वाई कैंसल थे यानी डैश बची जाए। नहीं सर। अच्छा मजाक कर रहा था, डी पे मत लेना। चलो हाँ, तो वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये पंकज बनाएगा मेरे लिए इक्वेशन, लेकिन पढ़ेगा आदित्य। आदित्य क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके सर। From the differential equation of family of ellipse having foci of on y-axis and center at origin. सेंटर ओरिजिन पे है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ले सकते हैं पंकज, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज जो है कैच यहाँ पे ये है, कैच यहाँ पे ये है आपको, आपके लिए पंकज, कि फोकाई इज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर फोकाई वाई एक्सिस पे तो इलिप्स का इक्वेशन क्या बनेगा? पंकज कहाँ गया पंकज? नहीं है सर, बोला मैं। पंकज नहीं है, नहीं। कहाँ गया तू? अरे खुदा, चलो आदित्य आप ही बोल लो, चलो। ओके सर। क्या करेंगे सर अपना एलिप्स में अपना एक्स 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 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाला था ना, एक्स नहीं हाँ। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर था कुछ। देखो एक्स स्क्वायर बाय फोकस, अगर मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि ए ग्रेटर देन बी हो तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएगा। म्यूट हो जाओ बेटा। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और अगर उल्टा हो कि भाई बी ग्रेटर देन ए हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पे मेजर एक्सिस यानी कि फोकाई, मेजर एक्सिस जहां पे होगी वहां पे फोकाई होगा। स्लैश फोकाई। लेकिन यहाँ पे आपने जो इक्वेशन जो बनाने की बात कर रहे हैं ना वो लोग, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है, ऐसा कोई उन्होंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है। दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग सच कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो हाउ कम वी कैन फाइंड कि वेदर हाउ टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो इसके लिए क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई फोकाई जो है वो वाई एक्सिस पे है। उन्होंने ऐसा बोला है कि फोकाई जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो इसको ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए दिखाने, यानी कि इसका मतलब ये होगा फोकाई वाई एक्सिस पे, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है वो ए से बड़ा है। अभी समझा ना वापस, कि हमने पिछले साल ऐसा सीखा था कि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो मेजर एक्सिस या तो फोकाई जो बोलो वो एक्स एक्सिस पे है, उल्टा हो कि बी ग्रेटर देन ए हो तो मेजर एक्सिस या फोकाई जो वाई एक्सिस पे है। अब उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला ही है फोकाई वाई एक्सिस पे, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी तो समझ ही सकते हैं, उल्टा समझ सकते हैं कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो उसको इक्वेशन की तरह किस तरह से करेंगे रिप्रेजेंट। तो ऐसा करेंगे कि वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, याद करो, वो भी पता ना हो तो फिर अपना तो बेड़ा गर्क समझ लो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। अब यहाँ पे फोकाई जो है वाई एक्सिस पे है, तो फोकाई वाई एक्सिस पे है तो वो दिखाना है, फोकाई वाई एक्सिस पे वो दिखाना है। तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, उसको इस तरह से दिखाएंगे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उल्टा कर लेंगे, यानी कि एक्स के नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि फोकाई इज ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज फोकाई इज ऑन वाई एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट आपको जेडब्ल्यू में भी बहुत काम में आने वाला है, बराबर। तो आपका ए और बी कहाँ पे किसके नीचे है, इस तरह से फोकाई रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया ये चीज तीनों को? यस सर। ये आपका रिजल्ट डन हो गया। अब हम क्या करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू
एक्स डेरिवेट कराएंगे ऑन बोथ द साइड्स, वो तो हमें बचपन से पता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू, ये बी स्क्वायर है, ये आयुसी के लिए हुआ है ऐसा, ठीक है। अपॉन ए स्क्वायर, बट इम्प्लिसिट फंक्शन रूल, dy बाई डी एक्स, 1 इक्वल टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, 2 कॉमन निकालो तो 0/2 0 हो जाएगा, y बाई ए स्क्वायर अपनी जगह पे रखो, इंटू dy बाई डी एक्स, नहीं एक सेकंड, अलग तरीके से करते हैं, ये थोड़ा लोचा वाला काम हो जाएगा। उसको ऐसा भी कर सकते हैं हम कि पहले 2 कॉमन निकाल लो, चलो, तो एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0/2, 2 कॉमन निकाला और डिवाइड बाई 2 0 कर ले, 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन को 2 मान के चले, ये इक्वेशन अपना 2 है। अगेन लिखेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो एक्स अपॉन बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आयुसी क्या होगा बेटा, 1/b स्क्वायर, एक्स का 1 ही हो जाएगा ना, और वाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंस 1/a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। लेकिन आप देखोगे dy बाई डी एक्स, दूसरा dy बाई डी एक्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, अब y को कांस्टेंट रखो और जो ऑलरेडी dy बाई डी एक्स है उसको डिफरेंशिएट दूसरी बार करोगे तो क्या आएगा आंसर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, उससे वाला कुछ नहीं हो सकता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ये दूसरा एक चीज लिखना भूल गया कि ये पूरा 1/a स्क्वायर जो है वो ये बाहर निकाला है हमने, ठीक है। तो 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इक्वल के उस साइड पे भेज दो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/a स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये पूरा टर्म समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, बराबर। चलो इसको हम रिजल्ट क्या मानेंगे, 1, हमने अभी तक कौन से रिजल्ट माने, 1 2 और ये होगा 3, तो ये रिजल्ट 3 होगा। अब ये रिजल्ट 3 की वैल्यू रिजल्ट 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम ये लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ 1/b स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी ये इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है 1/b स्क्वायर की पूरी वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कराएंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यानी कि इक्वेशन 2 में ऊपर कौन है, 1/b स्क्वायर के साथ x है, यानी कि
इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो इक्वेशन 3 है उसके साथ में x मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट होल ब्रैकेट ओवर प्लस वाई बाई ए स्क्वायर। इक्वेशन 2 कौन है, प्लस ये इतना टर्म हमने 1/b स्क्वायर की जगह पे लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई एक्स कर लिया। अब प्लस वाई बाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, तो वो लिख लेंगे, प्लस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि आप देखोगे कि पूरे दोनों टर्म में से 1/a² कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, और 1/a² कॉमन निकल के वहां पे 1/a² है तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1/a² क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अब आर्बिट्री कांस्टेंट सभी दोनों निकल गए, बी स्क्वायर भी निकल गया, ए स्क्वायर भी निकल गया। अब जो बचा, यानी हम क्या करेंगे, कलर चेंज करते हैं, माइनस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो। बोलो क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर। हमने क्या किया, अगर नहीं समझ में आया तो 1/b² की जो ये वैल्यू है ना, ये हमने कुछ नहीं किया, हमने इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे हमने 1/b² की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, 1/b² की जगह पे ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बराबर, जो 1/a² वाली, यानी दोनों टर्म में से 1/a² कॉमन निकल के मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू a स्क्वायर 0, और फिर माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर बचा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बोलो राज और आयुषी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हाइपरबोला का है, वो आपको लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे पीडीएफ फाइल कल भेजो। हेलो हाँ बेटा। हेलो हेलो हाँ बोलो। હા સર સંભળાય છે ને? નો हाँ ડાઉટ સર. સર हाँ मैं ક્યારે બોલું છું? ઓકે, તો મેં ક્વેશ્ચન નંબર 10 જે છે તે હોમવર્ક આપું છું, આ પ્રેઝન્ટી કરવાનો છે, પણ હાઇપરબોલા છે। હાઇપરબોલાનો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ખબર છે, x² - a² - b² = 1, બરાબર। આ જ રીતના કંઈક એડજસ્ટમેન્ટ કરીને તમને લાવવાનું રહેશે, મને મોકલો। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 10 પર આવીએ। ફોર્મ ધ ડિફરન્शियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, हमें फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, कौन सी कंडीशन में, कि वो सर्कल जो है उसका सेंटर y एक्सिस पे हो और रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है। सेंटर जो है y एक्सिस पे, यानी कि मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे हरे, मेरा कोई सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो y एक्सिस पे होगा, यानी कि उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो x तो 0 ही होगा, और रही बात y कोऑर्डिनेट कोई b होगा। रेडियस कितना है, तो रेडियस जो है वो 3 यूनिट है, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि इसका मतलब ये होगा सेंटर h, k जो है, सेंटर h, k जो है वो कौन है अपना, 0, b है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कई मैंने कल भी लिखा था, आज वापस लिख रहा हूँ, क्या है, x - h होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे एच कौन है 0 और के कौन है बी, यानी कि जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कौन है यहाँ पे, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो इसको हम मान के चले रिजल्ट 1, differentiating with respect to x on both the sides। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये होगा 2y माइनस बी, इम्प्लिसिट फंक्शन रूल है y divided by dx। 2 कॉमन, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा राज, और x 0/2 0 हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y माइनस बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आयुषी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैं वाई डेस लिख सकता हूँ कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई डेस है। चलो अब ये इसको रिजल्ट 2 मानो, तो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 तो मैं y माइनस बी की जगह पे रिजल्ट 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ रहा, ये रहा, उसकी जगह पे माइनस एक्स बाई वाई डेस लिख सकता हूँ मैं, यानी मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा माइनस एक्स अपॉन वाई डेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यानी कि बस अब उसको सजाना ढजाना है आपको, और कुछ नहीं कर सकते हम। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। पीछे आंसर ऐसा नहीं भी दिया हो तो टेंशन नहीं लेने का, आप लोगों को यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, फिर एलसीएम निकालो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, मतलब ये आपका पूरा आंसर आ गया। यहाँ से करना तो करो, नहीं करोगे तो चलेगा, चलो कर लेते, चलो आप भी क्या याद रखोगे। माइनस एक्स अपॉन वाई डेस का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी एलसीएम निकालो तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डेस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेस स्क्वायर इंटू 9। बस खत्म, ये आंसर आ गया। चलो वाई डेस की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स डालना हो तो डाल सकते हो। यानी इसमें हुआ क्या, इसमें भी हमने वही किया, हर एक इक्वेशन हमने इस तरह से बनाया। क्या बनाया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट किया, कौन से कंडीशन के साथ कि डिफरेंशिएशन हमने सब जितना हो सके उतना कम बार किया, हमने ऑलमोस्ट एक एक बार किया है। एक आध कोई इक्वेशन के अंदर हमने 2 बार करने की जरूरत पड़ी, वरना तो एक ही बार किया है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। कल एक चीज मैं आप लोगों को स्पेसिफाई करना भूल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की बात करें ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है और होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आते हैं। हम पार्शियल नहीं करने वाले अभी 12th साइंस के इसके अंदर। पॉसिबली कोई आप कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड जा रहे हो, या अगर आप प्योर मैथमेटिक्स प्योर साइंस जा रहे हो तो फिर उसके अंदर मैथमेटिक्स में पॉसिबली आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, और हेटेरोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आएंगे। हमारे कोर्स के अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, वो एक हम कॉन्सेप्ट समझ ले। तो अब एक्सरसाइज 9.4 से लेकर 9.6 तक सभी के सभी जो है वो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, बराबर।
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, और वो भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। तो आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक के अंदर, तो हेडिंग ऐसा ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, जिसको हम होमोजेनियस भी कहेंगे। यानी कि अब ये क्या बला है, समझाता हूं। एक प्रैक्टिकली सम करते हैं, और उसके अंदर ये जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट सम कहा गया 9.4। For each of the differential equation in exercise says 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यानी 1 से 10 तक के जितने भी सम है ये एक्सरसाइज के अंदर, उसके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, उसके जनरल सॉल्यूशन लाना। अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.3 तक क्या किया? एक्सरसाइज 9.3 तक ये किया कि भाई हमें दिया गया था एक नॉर्मल सा इक्वेशन, और उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब यहां से गंगा उल्टी बहने शुरू हो जाएगी। उन्होंने पहले से ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और उसके सॉल्यूशन में हमें कन्वर्ट करना है। दिमाग में जा रहा है मैं क्या क्या कह रहा हूं कि नहीं सेट हो रहा है? 9.3 तक हमने क्या किया कि इक्वेशन दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि पैराबोला का इक्वेशन दिया, कि इलिप्स का इक्वेशन दिया, कि सर्कल का इक्वेशन दिया, कि कुछ नॉर्मल सा इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने, और उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने को बोला तो हमने किया। अब एक्सरसाइज 9.4 से आप देखोगे कि पहले से ही डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, तो फिर इसका क्या करेंगे? म्यूजियम में टांग देंगे उसको? नहीं, हम क्या करेंगे, वो जो पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हमें सॉल्यूशन लेके आना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से इक्वेशन से आया है। हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से इक्वेशन से आया है, उसका मदर इक्वेशन क्या है, पेरेंट इक्वेशन क्या है। तो जो हम पेरेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं उसको क्या कहेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। बोलो, ये जो मैं स्पीच दी मैंने वो समझ में आया कि वापस समझाऊं? वो एंडिंग तो पता नहीं क्या नहीं है मेरा भाई, ये dy/dx इक्वल्स टू, हाँ सर याद आया, मतलब इसका पेरेंट इक्वेशन फाइंड करना है, किसमें से मतलब आया कहाँ से है ये जो हाँ, दिया ये हुआ 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x है। अब इसको तू क्या कहेगा, नॉर्मल इक्वेशन कहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेगा? सर डिफरेंशिएटेड है क्योंकि dy/dx के फॉर्म में है, बराबर dy/dx के फॉर्म में है, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हाँ है। तो ये कहाँ से आया, इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पैदाइश कहाँ से हुई, ये हमें फाइंड करना है, उसका पेरेंट इक्वेशन लेके आना है। अभी तक हमें पेरेंट इक्वेशन दिया गया था और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आते थे। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका पेरेंट इक्वेशन लेके आना, उल्टा जाना है। हमें जर्नी जो है वो उल्टी करनी है, वॉमिट नहीं करनी है, उल्टा जाना है मतलब में, हाँ, वॉमिट नहीं करनी है, उल्टा जाना है। यानी कि dy/dx यानी डेरिवेटेड फॉर्म है अपने पास 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब मुझे बोलो कि अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हुआ है, और मुझे पेरेंट इक्वेशन यानी उल्टा जाना है, उसके ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है, तो डिफरेंशिएशन का मुझे ऑपरेशन भी तो अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, बराबर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से हम एक्सरसाइज 9.4 से हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हम इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। मैं ये पूरा समझा रहा हूँ क्या समझाने के लिए, कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब मुझे इंटीग्रेशन करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर मोदी सर ने एक चीज समझाई होगी। कब समझाई होगी ये चीज? कि जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करते होंगे तब एक चीज समझाई होगी कि फॉर एग्जांपल मानो कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अरे सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि लॉग फॉर एग्जांपल मानो कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलो अब इसको इंटीग्रेट करना है, लॉग नहीं भी लिखते तो चलता, मैं लॉग लिखा है चलो मैंने। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट किस तरह से कर सकेंगे? लेट 10x इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट का सेक्स स्क्वायर रखा जाएगा, फिर अपने डी थीटा सेक्स फाइंड स्क्वायर कर एक्स, लेंगे। मेरी बात सुनो, सेक्स स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आता है आप लोगों को? हाँ सर। यानी कि मैं जब कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ, समझना तीनों, अगर मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्या करने के लिए? ऐसे ही नहीं, सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूट जो करूंगा उसको मैं डेरिवेट करूंगा, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसको मैं डेरिवेट करूंगा। तो उसका जो डेरिवेशन भी है वो भी उस कंटेक्स्ट में होना चाहिए, यानी कि ये थीटा एज्यूम कर रहा हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन भी डी थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि मैं फॉर एग्जांपल मानो कि एग्जांपल, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो वन अपॉन में लॉग वन अपॉन थीटा लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीग्रेट करने के लिए dx। ऐसा पॉसिबल है? मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा मैं? नहीं सर, इंटीग्रेट उसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जिसके हाँ यानी कि जो वेरिएबल है बराबर है उसी रिस्पेक्ट के अंदर ये डिफरेंशिएशन का होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश हाँ कर रहा सर हूँ? पक्का। बराबर। तो अब इसके अंदर भी तो ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, दो वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक y है और एक x है, दो वेरिएबल तो होंगे होंगे। तो यहां से पैदा होगा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। यानी कि, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें, इसका भी एक चाबी दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ। हमें ये याद रखना है हमेशा कि dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में आने चाहिए। dy और dx हमेशा क्या आने चाहिए? न्यूमरेटर में आने चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं जाने चाहिए। पूरी दुनिया उलट पुलट कर लो चलेगा, लेकिन dy और dx जिसके कंटेक्स्ट में आपको इंटीग्रेट करना है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। अगर इस तरह से कर सकते हो तो उसको हम कहेंगे, इस टाइप के पैटर्न को क्या कहेंगे हम? वेरिएबल सेपरेबल्स कहेंगे। इसको हम कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल। अभी मेरी डेफिनेशन अधूरी, थोड़ी अधूरी है, उसको हम पूरी कंप्लीट करते हैं। अब क्या करेंगे कि ये dx को मैं उधर वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूं तो dy अपनी जगह पे बचेगा। dy तो अपनी जगह पे न्यूमरेटर में है ही, ये यहाँ पे चला गया, लेकिन ये इक्वल में कौन है? 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स है। यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट, ये dx उधर चला गया। तो अब हुआ क्या कि x वाला जो वेरिएबल है वो उसके साथ कौन है? dx, और dy तो चलो कोई dy है, यानी ये कौन सा हो गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। इसको कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। dy, y वाला फंक्शन dy के साथ, x वाला फंक्शन dx के साथ, उसको कहेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं समझाया मैंने अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ओरिजिनल मदर या पेरेंट इक्वेशन में लाना है, तो उसका उल्टा ऑपरेशन करेंगे डिफरेंशिएशन का, जो है वो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कराने से पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यानी होमोजेनियस फॉर्म में लाना जरूरी है। इसको होमोजेनियस या वेरिएबल सेपरेबल में बोलेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो डाउट सर। बाकी के दो नो डाउट सर। अच्छा, पक्का? देखो अभी कुछ हो तो बोल लो।
યસ बोलने भाई, तो क्या है, क्या क्या पूछना है, बोल। नहीं सर નથી એમ चलो, तो अब नहीं है ना, तो हम आयुसी सम कराएंगे। आयुसी इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई क्या होगा? y equal to 1 minus cos x y हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई। सर 1 minus cos x वालों ना नहीं, लेफ्ट साइड पूछा है, एलएचएस देख, डीवाई का इंटीग्रेशन 1 upon आदित्य, डीवाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वाई। वाई आएगा ना, बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई विल बी वाई। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। राज, 1 माइनस कॉसेक्स अपन 1 प्लस कॉसेक्स को किस तरह से लिख सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला कुछ पता है? सर 2 sin² x/2 और अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस cos square cos x x by और 2, 2 cos² x/2 यानी कि 10 x और स्क्वायर बाई फिर उन 2, दोनों को tan² x/2। बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x बाई 2 dx तो है ही, इंटीग्रेट करना है वैसे भी। अच्छा आदित्य, 10 स्क्वायर x बाई 2 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सर tan स्क्वायर x बाई 2 का नहीं मिलेगा, मतलब tan स्क्वायर x का नहीं है, tan x आता है, तो इसको अपने sec में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपना, वेरी tan गुड, स्क्वायर x वेरी प्लस गुड। x स्क्वायर आता तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक्स स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 10 स्क्वायर x बाई 2 का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है। तो उसको हम सेक्स स्क्वायर x बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको लिखेंगे 1 प्लस सेक्स स्क्वायर x बाई 2। अब y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन दोनों को लगेगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x बाई 2 dx, यानी कि y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा, 10x बाई 2। बस 10x बाई 2 लिख लूं, क्या और कुछ करना पड़ेगा? है प्लस c। प्लस सी भी लिख लिया, और कुछ करना पड़ेगा कि आगे 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 आंसर? करना पड़ेगा ना भाई, हो जो गया। x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई वो डिवाइड में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय हाफ, यानी कि डिवाइड बाय हाफ, यानी कि 2 to ऊपर चला जाएगा। ये अरे हाँ सर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है ना भाई, हाँ। तो जो कोफिशिएंट डिवाइड मल्टीप्लाई होगा डिवाइड पर हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ही हाफ है, यानी 1/1, 1/1 यानी कि 2 चला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसका कहने का मतलब ये है आयुषी, राज, आदित्य, कि ये जो इक्वेशन है उसको हम डेरिवेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये पेरेंट इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, ये है। घुसा भेजे में, वरना ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, सब कुछ नहीं भेजा। सर, सब भेजा है, हाँ सर। हाँ, लेकिन सब भेजा तो भेजा है, लेकिन भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, हाँ समझ वो में तो आया? हो गया। हाँ हम्म हम्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, dy और dx न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो dy अपनी जगह पे, ये अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर को नीचे ले लेते और ये dx को उधर भेज देते, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद ही इंटीग्रेशन की साइन लगाओगे, उससे पहले उतावल नहीं करनी है। चलो, अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो है ही, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। राज, 1/√a² माइनस x² की फॉर्मूला क्या होती है इंटीग्रेशन में?
आदित्य Sir, x by 10. हाँ No, sir. याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/√, में हो और कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा या कॉस इनवर्स के फॉर्म में रहेगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और आप 10 की बात करो तो ऐसा होगा कि अंडर रूट नहीं रहेगा और प्लस में रहेगा x² प्लस a² dx, तो वो रहेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बराबर है। तो हम अभी कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, ये पहली वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसका दूसरा पेज लेते हैं, यानी इंटीग्रेट कराओगे किसका, इसको इंटीग्रेट कराओ, ये फॉर्मूला रखो आयुसी, ये फॉर्मूला पहली वाली फॉर्मूला रखो, यहाँ पे a कौन है 2 है और एक्सिस का पे क्या यूज करेंगे y, यानी कि ये होगा साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो x हो जाएगा प्लस c। ये आपका पेरेंट इक्वेशन आ गया। किसी को पूछना है कुछ? No, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर इजी है ना, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो dy/dx अपनी जगह पे इज इक्वल टू y-1। अरे आयुषी 1 minus. 1 माइनस y। देयरफॉर dy अपनी जगह पे न्यूमरेटर में रहेगा 1 माइनस y, को नीचे डिवाइड करवा लो, इज इक्वल टू dx को उधर न्यूमरेटर में लेके जाओ। ऐसा हो गया तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो उसको इंटीग्रेट कराएंगे। अब आयुषी फॉर्मूला बोलेगी, आयुषी 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस y का क्या होगा इंटीग्रेशन? y/1 minus y. हाँ बेटा, y/1 minus y. नहीं जरा भी नहीं। अच्छा मैं दूसरा 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 पूछता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा? क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा? 1/x dx 1/x 1 हेलो सर, क्या आप सोच रहे हैं? स्कूल में होते ना तो मैं आपको 50 राउंड मारा था ग्राउंड का। कितने? 50। 50 हाँ सर। आदित्य, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा? सर अपने ओ इस सर, को आपने वो ऊपर वाला ले जाएंगे, क्या बोलते हैं, x को तो x⁻1 हो जाएगा। अरे यार ये भी ऐसा ही निकला, तेरे को तो 100 मारा था आदित्य। राज क्या हुआ सर, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, 1/x का मतलब सर। डिफरेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है भाई। मैथ्स का खून कर रहे हो आप लोग। राज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। राज राज अभी पेस्ट्री बना रहा है, ब्राउनी, जो मुझे कभी नहीं मिलने वाली। चलो मैं ही बोल देता हूँ, मेरे वोट तो मुझे देनी है, मुझे और मोदी सर, हम सर दोनों लॉग वोट देना है। लॉग लगाना है क्या? हाँ लॉग लगाना है, तो लॉग ही लगाएंगे ना। लॉग हाँ, log 1 minus y is इंटीग्रेशन log ऑफ mod 1/x dx इज log mod x प्लस c। ठीक है। अब हाँ यहाँ हाँ पे तो यहाँ पे 1/1 माइनस y है, तो ये होगा log 1 माइनस y, लेकिन माइनस y के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड बाय -1, यानी कि माइनस की साइन बाहर निकलेगी, इज इक्वल टू x प्लस सी।
सर अपना बुक में आप लिखते रहो कि कितने राउंड किसको मराने हैं, तो अपने वहाँ पे अच्छा सब तो प्लस करके साथ में एक ही बार में राउंड मार एक लेंगे ही स्कूल बार जो। यानी एक ही दिन में कार्डियो कर लेंगे हम, फिर राम राम सट्टी अपना। अच्छा है, अच्छा है। तो सर EMI पे हफ्ते हफ्ते में। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दो, ये प्लस वाला टर्म, प्लस वाला के बाद का जो टर्म है उसको उधर भेजेंगे, तो माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई हो जाएगा। अब हम मैंने क्या समझा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या समझाया था भाई, कि कुछ भी हो जाए dx और dy तो न्यूमरेटर में ही रहेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। पहला, दूसरा, y वाला टर्म dy के साथ, x वाला टर्म dx के साथ, y वाला टर्म dx के साथ x, अरे y वाला टर्म dy के साथ, x वाला टर्म dx के साथ, उसको भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहेंगे, बराबर है। तो ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर y अपनी जगह पे रहेगा, टेन वाई नीचे उतर जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर dy अपनी जगह पे रहेगा, टेन वाई नीचे उतरेगा, इज इक्वल टू, माइनस तो है ही, सेक्स स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे रहेगा dx के साथ, dx न्यूमरेटर में रहेगा, और टेन एक्स नीचे उतर जाएगा, उधर जाएगा ना, तो नीचे चला जाएगा। अब देख लो, ये इसी तरह से ही है ना, बराबर ही है ना। अगर मैं इसको वापस, अब वापस समझने के लिए कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन वो ही आ जाएगा। अब x के साथ dx है, y के साथ dy है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने का जगह ही नहीं है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कहो। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, आगे बढ़ू। नो डाउट। हाँ अब आप देखोगे कि सेक्स स्क्वायर वाई जो है, उसको मैं लिख सकता हूँ कि dy ऑफ टेन वाई डिवाइड बाई टेन वाई तो है ही, और ये dy भी अपनी जगह पे है ही, इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ dy/dx ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स तो है ही, dx तो है ही। क्यों ऐसा कर रहे हो, थियरम याद नहीं होगा, सर ने थियरम करवाएगा, थियरम बोलो या फॉर्मूला बोलो। हमने ऐसे इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला लिखी है, समझी है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस ऑफ थीटा डिवाइड बाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लॉग मॉड एफ ऑफ थीटा प्लस सी। ये फॉर्मूला किया आप लोगों ने, ऑब्वियसली चैप्टर खत्म हो गया, होना ही चाहिए, किया ही होगा। आगे पार्ट पीछे सपाट, याद आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा आदित्य चला गया, आयुषी और राज, यस सर। फॉर्मूला याद आ रही है कि नहीं? हम्म। ना बोल रही, बोलो। मुझे तो सर अच्छे में क्वेश्चन भी नहीं पता है कल जो ये फॉर्मूला। चलो उसको और इजी तरीके से करते हैं, ये एक तरीका तो है ही, और एक इसी तरीके से करते हैं। चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, चलो यही मेथड है ही, दोनों से आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों फॉर्मूला एक ही है। लेकिन आप लोगों को अभी समझ में इस तरह से नहीं आ रहा, तो मैं उल्टे कान पकड़ रहा कि भाई उससे समझ में आ जाए, आना चाहिए समझ में।
लेट टेन वाई इक्वल्स टू कोई अल्फा मान के चलते हैं, तो सेक्स स्क्वायर वाई टी वाई इज इक्वल टू डी अल्फा होगा। बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक्स स्क्वायर वाई होगा, डी वाई इज इक्वल टू डी अल्फा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर बाई डी वाई क्या होगा? सेक्स स्क्वायर बाई डी वाई क्या होगा? डी अल्फा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टेन वाई को क्या माना है? अल्फा माना है। चलो ठीक है, इक्वल टू इसी तरह से यहाँ पे अगर करें कि हम ऐसा मान के चले कि लेट टेन एक्स को अगर मैं मान के चलता हूँ बीटा, तो सेक्स स्क्वायर बीटा डी बीटा, अरे क्या कर रहा हूँ, यानी कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स बराबर डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? डी बीटा लिखेंगे, यानी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का पे क्या लिखूंगा मैं? डी बीटा लिखूंगा, डिवाइडेड बाई टेन एक्स को हमने क्या माना है? बीटा माना है। अभी हमने फॉर्मूला समझी कि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग मॉड एक्स, यानी कि वन अपॉन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग अल्फा इक्वल टू माइनस डी वन अपॉन बीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग बीटा। अब एक चीज, दूसरी एक चीज याद रखना कि अगर एक से ज्यादा लॉग में इंटीग्रेट करने के बाद, याद रखना, ये याद रखना, एक से इंटीग्रेट करने के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म्स लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट सी को भी लॉग सी में ले लो, सिर्फ सी मत लिखना, उसको लॉग सी में ले लो, तो इजी पड़ेगा काम करना। माइनस लॉग बीटा को उधर भेज दो तो क्या होगा? प्लस लॉग बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बोल। अब वर्किंग रूल ऑफ लॉग, तो आयुषी को रात को 12 बजे पूछो तो आता है कि अगर प्लस में है लॉग वाले टर्म्स और उसको कॉमन लॉग निकालते तो प्लस क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा है, लॉग कॉमन निकालो तो क्या होगा? अंडर ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कौन है? इज इक्वल टू लॉग सी है। मैंने लॉग लेने का रीजन इसलिए कहा था कि लॉग लॉग अगर होगा तो कट हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करना इजी पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी। लेकिन अल्फा क्या माना है हमने? टेन वाई, और बीटा क्या माना है? टेन एक्स, यानी कि अल्फा की जगह पे मैं लिखूंगा टेन वाई, बीटा की जगह पे लिखूंगा टेन एक्स इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये क्या हो गया अपना डिफरेंस, अपना क्या होगा ये? जनरल सॉल्यूशन। बोलो क्या डाउट है? No doubt. राज कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स dx dy है माइनस e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल्स टू 0। पहले क्या करना पड़ेगा आदित्य? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स dy, माइनस को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट ओवर dx। अब हमने क्या समझाया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में dy वाला टर्म y के साथ, x वाला टर्म dx के साथ, और dy और dx न्यूमरेटर में रहेंगे। अब तो dy अपनी जगह पे रहेगा,
कोई y वाला टर्म है ही नहीं, और e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये टर्म जो है वो नीचे चला जाएगा, सॉरी ये माइनस है ना, ये dx अपनी जगह पे, उसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस वाला टर्म था वो ये यहाँ पे, और ये प्लस वाला टर्म वहाँ पे डिवाइड हुआ। नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है, अभी तक तो इंटीग्रेट हमने किया भी नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, यानी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों वापस समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वापस कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्यों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कहेंगे कि dy वाला टर्म और dx वाला टर्म दोनों अलग अलग हो गए, dx के साथ dx के साथ x वाला टर्म आ गया, और दोनों निम्नतर में है dx और dy, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कंडीशन सभी सेटिस्फाई हो रही है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, चलो इंटीग्रेशन dy तो बहुत इजी है, y आ जाएगा। मुझे आदित्य से पूछना है ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। सर ई रेस टू जो एक्स है फिर ई रेस टू माइनस एक्स है उसमें से किसी सपोज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो सर मतलब होल डिनोमिनेटर को कुछ सपोज कर सकते हैं टी टाइप का कुछ ऐसा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये अभी आप चले गए थे तो वापस आए थे कि नहीं पता नहीं, मैं आयुषी और राज को मैंने फॉर्मूला समझाई कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने की होगी। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी लिखी थी मैंने, क्या फॉर्मूला लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस ऑफ थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ ऑफ थीटा। ये आ रहा है कुछ, प्लस सी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फॉर्म हो, वापस न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का क्या हो, डेरिवेटिव फॉर्म हो, और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड एफ ऑफ थीटा है। ये फॉर्मूला किया आप लोगों ने, और की आई मीन है ही, याद आ रहा है कुछ, हाँ सर। नहीं आ रहा है याद, तो क्या हाँ इंटीग्रेशन सर, किया आप यस लोग। यस यस। अब देखो, तो अब मान के चले कि इंटीग्रेशन ऑफ, हम पहले ये मान के चले कि लेट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो अजम्पशन का कह रहे हो ना वो करते हैं, चलो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को हम क्या मान के चले, कोई थीटा मान के चले, तो जो अजम्पशन करेंगे उसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स, चेन रूल माइनस बाहर निकलेगा, dx इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा हो जाएगा। चलो तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा न्यूमरेटर जो है वो डी थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो थीटा हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, आयुषी वाई। और यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, तो इंटीग्रेशन की साइन रहने दो, से काम करो साथ में इंटीग्रेशन कराएं। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वाई रहने दो, चलो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस डी एक्स को क्या मानेंगे, डी थीटा मानेंगे। ये डिवाइड बाई न्यूमरेटर को हम, डिनोमिनेटर को हम क्या माने थे, थीटा। अभी हमने फॉर्मूला समझा कि 1/x dx इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा क्या होगा, log mod थीटा, या सिर्फ थीटा log थीटा,
प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। लेकिन थीटा क्या है? थीटा क्या है? e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर। बोलो, यहाँ कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। अरे कुछ बोल दो भाई। No doubt. Hello, sir. No doubt, sir. नो डाउट सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, आदित्य उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो बोलो क्या करेंगे। Sir, cross कर दो वापस में। वेरी गुड। यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट कराएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? y। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? y क्यूब बाई Y cube by 3. x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ओहो हो, Very easy. ये तो पप्पू था। अरे ये Yes. पप्पू नहीं था, हमने गलती की है। मीन्स है तो पप्पू ही, गलती की है हमने। क्या यार, कुछ कैसे बोलते ही नहीं थे। सर dy अपॉन 1 प्लस y। वही तो। ये मैंने डिवाइड में लिखे है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ये पता है ना किसकी वजह से हुआ? आयुष. क्वेश्चन ही गलत लिखा है। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करेंगे तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, dx वहां पे चला जाएगा। तो dx और dy न्यूमरेटर में x वाला टर्म dx के साथ, y वाला टर्म dy के साथ, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। Log mod 1 plus y square. नो सर 1 इसके अपॉन तो कैसे सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, यानी कि 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। या यहाँ पे ए तो 1 है, यानी कि सिर्फ टेन इनवर्स y लिखेंगे इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x क्यूब बाई 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंसी। समझ में आया कि बाउंस गया? सिर्फ फॉर्मूला का कमाल है और कुछ नहीं है। हाँ सर, हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 होमवर्क दे रहा हूं। 9 सम इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dx। बहुत इजी सम है कि नहीं है? चलो ये करके दो। इंटीग्रेशन dy इज इक्वल dx उधर चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन की साइन मैंने पहले से रख दी है। अब ये इंटीग्रेशन राज कराएगा। इंटीग्रेशन dy तो y हो गया, चलो खत्म हो गई बात। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x कैसे करें? भाई सर इंटीग्रेशन पहले तो सब में अलग अलग डाल देते हैं, मतलब फिर हाँ हो गया ना, वो तो हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इसलिए तो इंटीग्रेशन की साइन रख ली हमने। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लिख के रखे थे हमने।
इंटीग्रेशन ऑफ dy टू y, वो तो अब सोचना ही नहीं है, वो तो ठीक है, चलो वो तो फालतू है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x कैसे करें? आदित्य? सर हम्म, इसमें सर वो सिंपल मेथड नहीं लगेगी, सर ने हम लोग को लास्ट में पढ़ाया था चैप्टर में एक मेथड, वो मतलब कुछ बोल मतलब याद है, बोल लियाएट वाला है क्या सर? लियाएट लियाएत अली खान, यस, LIATE. L stands for logarithm, I stands for inverse, A stands for algebra, T stands for trigonometry, E stands for वही करने का है। exponential. यानी कि इसका मतलब यह हुआ y dy is equal to integration of sin inverse x, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो आयुषी को पता है कि सबका मालिक एक मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनवर्स ऑब्वियसली पहले आ रहा है, बराबर। अच्छा, लियाएट की फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुंह पे नहीं होगी आप लोगों को शायद, अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx, जो जगह नहीं है मेरे पास लिखने की। यानी कि यहाँ पे u कौन बनेगा? साइन इनवर्स x, और v कौन बनेगा? 1, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy बन जाएगा y। अब ये फॉर्मूला डालनी है, ये फॉर्मूला अब चेक करोगे सर वही फॉर्मूला डाल रहे कि नहीं डाल रहे हैं। चलो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ इजी integration of dx will be x, integration of dx will be x minus integration d by dx of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square, integration of dx x whole dx। चलो तो वापस ये इक्वेशन एक बार लिखेंगे, y is equal to x into sin inverse x। ये जो है ना, वो तो एज इट इज पूरा इक्वेशन ही वापस एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना और बाकी है भाई। चलो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे मेरे भाइयों कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा, तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू सर 2x, हाँ डी थीटा, यानी कि अब d थीटा बाई 2 हो जाएगा। x dx माइनस x dx या x dx, सिर्फ x dx लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। तो x dx इज इक्वल टू माइनस हाफ डी थीटा, यानी कि इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज, माइनस एक्स dx की जगह पे, ये माइनस एक्स dx की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस हाफ डी थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हाफ डी थीटा हो जाएगा, और नीचे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट और थीटा लिखेंगे अंडर रूट थीटा, तो अंडर रूट थीटा डी थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन थीटा को मैं अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट थीटा को लिख सकता हूँ, थीटा रेज टू माइनस हाफ, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, नॉर्मल फॉर्मूला है ना ये, कि नहीं यार? नहीं यार, x रेज टू n dx की फॉर्मूला क्या होती है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ पे n कौन है आयुषी? माइनस हाफ का प्लस 1 करा, पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हाफ प्लस c,
तो ऊपर 2 कट हो जाएगा। हाँ बेटा, ये 2 और 2 तो कट हो जाएगा, प्लस हाफ यानी क्या, अंडर रूट थीटा, ठीक, लेकिन थीटा क्या माना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो के डाउट। Yes, sir. ओके सर, नो डाउट, पूछ लो के डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट सर। तो हमारा नया फॉर्म हो गए, बराबर है। चलो तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते, ठीक है, अब 2 दिन नो सर। ओके सर, बाय सर। Bye, sir.